Hello, good evening and welcome. You're watching this edition of The Blueprint, exclusive with me, Sagarika Mitra. And viewers, there is a controversy that has hit the Paris Olympics. This is the gender row which has ignited a lot of conversation, and let's tell you everything about it. Algerian boxer Imane Khalif, who failed a gender eligibility test last year, knocked her Italian opponent out in just 46 seconds in the 66 kg women's boxing category. Italian Angela Carini was distraught. She collapsed on her knees and sobbed in the middle of the ring after the defeat and did not shake hands with Khalif, who entered the quarterfinals in the category after the victory. Carini said she quit because of intense pain in her nose after the opening punches. The International Olympic Committee allowed two boxers who failed the gender eligibility test for the World Boxing Championship to be made eligible to compete in the 2024 Paris Olympics. Now, last year, the Algerian boxer was disqualified hours before her gold medal match at the Women's World Championship in Delhi. Algerian media has reported that Khalif was disqualified for having high level of testosterone in her system. IOC spokesperson Mark Adams said that everyone competing in the women's category is complying with competition eligibility rules. They are women in their passports, and it is stated in there that they are female. After today's bout, J.K. Rowling and Elon Musk are among the high-profile names who have condemned the Olympics for allowing Imane Khalif to compete in the women's boxing competition. Now, let's open up this conversation. Let's also play out some reactions that have come in, and then we'll have Duti Chand, Indian athlete who was also in the middle of a similar controversy. But first up, the reactions. This involves real people, and we're talking about real people's lives here. They have competed and they continue to compete in the women's competition. They have lost and they have won against other women throughout over the years. And by the way, this should make this absolutely clear for everyone. This is not a transgender issue. I know you know that, but I think there has been some misreporting on this, and I think it's very, very important to say that this is not a transgender issue. These women have been competing in competitions for many years. दुती चंद, इंडियन स्प्रिंटर, इज जॉइनिंग मी लाइव. दुती चंद, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात कर रहे हैं आज जब पेरिस ओलंपिक्स में जो जेंडर कंट्रोवर्सी इग्नाइट हुआ है उस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोग, ज्यादातर हम देख रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है जो इटालियन बॉक्सर है उनके लिए. आपका इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप खुल के हमारे दर्शकों को बताइए. कल का जो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है, पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, न्यूज भी हो रहा है. ये सब फेस मैंने किया था 2014 में, जब मेरे ऊपर हाइपरजम का आरोप लगा गया था और सारा दुनिया में कहा गया था कि मेरा जेंडर फीमेल नहीं है, मेल है, इसलिए मैं टीम में महिला की कैटेगरी में खेल नहीं सकती हूँ. तो स्ट्रगल किया था उस टाइम में, काफी दिक्कत का सामना किया, काफी लोगों का ताना सुनना पड़ा मुझे. हर जगह में जहां भी जाते थे लोग एक ही सवाल करते, तू लड़का है या लड़की है. तो ये सवाल सुन सुन के इतना इरिटेट हो गई थी मैंने कि खुद को प्रूव करने चला गया. तो इसी को लेके केस भी चैलेंज किया मैंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कोर्ट में केस दायर किया. तब मुझे पता चला कि मेरा जो टेस्ट हुआ था, हाइपरजम टेस्ट हुआ था, जिसमें मेरा हार्मोन लेवल थोड़ा मात्रा ज्यादा था, 3.05 मिलीग्राम था, जिस कारण टीम से निकाल दिया गया था. तो इसको लेकर मैं चैलेंज किया और मैं कोर्ट में वही कहा था कि मेरा जो भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है जेन्युइन है, मतलब मेरा नेचुरली हार्मोन है, इसमें मुझे कोर्स में कोई इफेक्ट नहीं देता है. जितना मैं मेहनत किया है इतना ही मैं सफलता लिया मैंने, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है. तो इसी को आखिर में रख के जो हमारे जज मैडम थे वो मुझे वर्डिक्ट दिए थे. तो जिस कारण से मैं लौट के फिर देश के लिए नाम रोशन किया. मैंने काफी कंपटीशन टूर्नामेंट में भाग लिया मैंने, जैसे रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, साउथ एशियन गेम, एशियन गेम, काफी बड़ा बड़ा इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करके मेडल लिया है. कुछ कंपटीशन में हार भी गया मैंने, मेडल भी ले नहीं पाई.
कॉमनवेल्थ गेम में भी मेरा मेडल नहीं था 2022 में, और टोक्यो ओलंपिक में भी मेडल नहीं है, ये रियो ओलंपिक में भी मेरा ओलंपिक में मेडल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात तो यही होता है कि सब जो कहते हैं कि हार्मोन टेस्ट लेवल बढ़ने से स्पोर्ट्स में एडवांस मिलता है, ज्यादा ताकत मिलता है, ज्यादा इंड्योरेंस मिलता है, स्पीड मिलता है, ये तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं नेचुरली हार्मोन से इतना जो भी मेरा प्रोड्यूस हो रहा है मेरे बॉडी में, मुझे कभी भी मैं फील नहीं हुआ कि हार्मोन वजह में आज मेरे परफॉर्मेंस कर रहा हूँ मैं। तो हार्मोन लेवल वजह परफॉर्मेंस होता तो काफी ऐसे एथलीट है जिनके पास ज्यादा हार्मोन लेवल है, लेकिन वो लोग क्यों नहीं जीत पाते। ये जिस लड़की ऊपर अभी आरोप लगा गया है, वो तो इससे पहले भी 9 कॉम्पिटिशन में हार चुका है। जब हारता है तो कोई सवाल नहीं उठाता, जब कहीं पे जीत जाता है तो सवाल उठना शुरू कर देते हैं। तो इनके साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मैं तो इनके साथ में हूँ। आप कह रहे हैं आप जो अल्जीरियन बॉक्सर है आप उनके साथ है, लेकिन आज का जो ये मुद्दा है जो सोशल मीडिया पे जो एक कॉन्वर्सेशन इग्नाइट हो चुका है, ग्लोबल सिटीजन्स और देश के और ग्लोबल जो सबसे बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने भी इस पे कहा है कि एक जो वुमेन स्पोर्ट है उस पे आपने देव लिटरली गॉन अहेड एंड उन्होंने कहा कि एक मर्द ने एक औरत को मारा और इसको हमने अलाउ किया है। ऐसी कमेंट्री आ रही है, इसको देख के आप क्या कहेंगे? जो लिख रहे हैं वो तो किसको देख के तो नहीं लिख पाएंगे ना। देखो मेडिकल टीम बताएगा लड़का कौन है लड़की कौन है, कौन वुमेन है कौन मैन है। तो इतना दिन से खेल रहा था, कोई सवाल नहीं उठा रहा था, आज ओलंपिक में जीत गया इसको मार के, इसलिए वो बोल रहे लोग। लेकिन मैं तो एथलीट हूँ, मैं बॉक्सिंग के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, मुझे इतना मालूम नहीं इनका एसोसिएशन क्या है, इनका स्पोर्ट्स का रेगुलेशन क्या है, मुझे इतना मालूम नहीं। मेरी एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब 2014 से पहले मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, काफी लोगों ने मुझे सवाल किया था हार्मोन के वजह जीत रहा है, वो मेडल ले रहा है, काफी लोग ऐसे सवाल किया था। उस टाइम में क्रिकेट किया था। जब मैंने रियो ओलंपिक में हार गया, जब मैं टोक्यो ओलंपिक में हार गया, कॉमनवेल्थ गेम में भी हार गया, उस टाइम तो कोई तो नहीं सवाल पूछा, बोला नहीं कि आपका हार्मोन लेवल बड़ा है फिर भी तू हार रहे, कोई तो सवाल नहीं किया, कोई नहीं पूछा। तो इससे कोई बड़े बड़े आदमी ऐसे ट्वीट में लिखना आसान है, लेकिन इसको एनालाइज करना बहुत दिक्कत है। जी नहीं, आप अपने चैलेंजेस के बारे में बताइए, क्योंकि आपने जैसे कहा आपको भी ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके आपको इस पूरे मुद्दे को खुद अपने केस में चैलेंज करना पड़ा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब एथलीट्स जिनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई है उनको इट्स नोटिस दैट उनको ज्यादा एडवांटेज मिलता है। आपने कहा कि नहीं, मैंने इसको चैलेंज किया है और इसमें यह कहा गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो बेसिक एक नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, जिन्होंने एज एन एथलीट आपने इसको लेकर स्ट्रगल किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अपने स्ट्रगल के बारे में आप बताइए। मैं तो वही जो हमारा रूल्स था पहले कि हार्मोन के वजह ज्यादा एडवांटेज मिलता है बच्चों को स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस क्रिएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो इस चीज को लेके मैंने केस अपील किया था स्विट्जरलैंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स में। तो उसमें वही कहा मैंने, जो भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है मेरा नेचुरल है, मैं बाहर से कोई ड्रग्स वाला मेडिसिन लेके इसको बढ़ाया नहीं, मैंने हार्मोन का इंजेक्शन भी लेके इसको बढ़ाया नहीं मैंने, जो भी है नेचुरल है और इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। रनिंग करने के टाइम में हो, वर्कआउट के टाइम में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी इंप्रूवमेंट में हार्मोन के वजह हो रहा है ये मुझे कभी भी फील नहीं किया है। जब मैं अच्छा परफॉर्मेंस करती हूँ, तो जब कड़ी मेहनत करती हूँ तो परफॉर्मेंस होता है, जब वो मेहनत नहीं करते, ट्रेनिंग में थोड़ा रिलैक्स करते तो आ जाते। ऐसे भी मेरे लाइफ में कम से कम 100 से 150 एबव में कंपटीशन पार्टिसिपेट किया मैंने, और हर कंपटीशन में जीता नहीं मैंने, कुछ इवेंट में जीता। जैसे 2018 में एशियन गेम में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 2019 में गोल्ड मेडल हासिल किया था, और साउथ एशियन गेम में एक ब्रॉन्ज एक सिल्वर मेडल हासिल किया था। और ऐसे भी नेशनल लेवल में काफी टूर्नामेंट में भी मैंने हारा। मैंने आपने नाम सुना कि हेमा दास हो, धनलक्ष्मी हो, ये भी काफी टाइम मेरी 100 मीटर में उन्होंने जीत कर गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। उस टाइम में तो कोई कुछ सवाल नहीं करता, जब मैं हार जाते तो कोई कुछ सवाल नहीं करता, जब जीत जाते तो खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करते, उस टाइम बोलते कि ना इसका टेस्टोस्टेरोन मात्रा ज्यादा है इसलिए वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जिसका हार्मोन है वो तो हर टाइम इसको परफॉर्मेंस में एडवांस करेगा। तो एक टाइम में कर रहा है, एक टाइम में क्यों हार जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई एडवांटेज हमको नहीं मिलता है हार्मोन के बजाय, सिर्फ मेहनत जो करता है वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। आपने देखा कि 2022 से अभी तक मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। तो मैं एक दिन था, दो ओलंपिक खेला मैंने, एक ही ओलंपिक में दो इवेंट में क्वालिफाई किया, इस बार मैं क्वालिफाई भी नहीं किया है ओलंपिक को। तो हार्मोन लेवल का कोई इशू नहीं रहता मेरे हिसाब से। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो बायोलॉजिकली एक मेल है उनको आपने वुमेन स्पोर्ट में अपॉर्चुनिटी दिया, और उन्होंने जो उनमें ताकत है, ऑब्वियसली एक फीमेल जो एनाटॉमी है उसको डिसएडवांटेज है। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये जो ईमान खलीफी की जो बात हो रही है, माने खलीफ की जो बात हो रही है कि वो बायोलॉजिकली मेल है,
और इस वजह से उनको एडवांटेज मिला। टेस्टिंग की बात करें या प्रोसेसेस की बात करें, लोग ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि जो एथलीट है वो बायोलॉजिकली मेल है या फीमेल है? लोगों तो इसको प्रूव नहीं करा सकते, वो इसको मेडिकल टीम, साइंटिस्ट टीम इसको प्रूव करा सकते हैं। मेरे टाइम में भी ऐसे सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुम लड़का हो, तुम लड़की के कैटेगरी में खेल नहीं सकते, तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, मसल कटिंग है। उस टाइम में मेरा मसल का थोड़ा कटिंग वगैरह था, ज्यादा स्ट्रेंथ भी था, ताकत भी था मेरी बॉडी में, तो काफी लोगों ने मेरे बॉडी को देख के सवाल करना शुरू किया। तो इसको लेकर मैं मेडिकल टीम से लेके सब जगह में मैंने प्रूव करके दिखाया खुद को कि मैं फीमेल हूँ, मेरी बॉडी में कोई भी लड़का का स्ट्रक्चर नहीं है। और कोर्ट भी इसको साबित किया, कोर्ट में जब मैं केस अपने कोर्ट भी साबित करके दिखाया कि हाँ, मेडिकल टेस्टिंग की आप बात कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसीजर कितना लंबा होता है? जैसे जो मेडिकल टेस्ट होते हैं या कोर्ट, आप तो कोर्ट तक गए थे, पर जो मेडिकल टेस्ट होते हैं या जो पूरा प्रोसीजर होता है ऐसे केसेस में, जिसको बेसिकली बहुत नुआंस तरीके से लोगों को समझने की जरूरत है, ऐसे केसेस में मेडिकल बॉडीज का क्या रोल होता है? वो कैसे टेस्ट करते हैं, अगर आप एक ब्रीफ में बता सके। मेडिकल टेस्ट तो पहले तो हमारा यूरिन लेते टेस्ट करने के लिए, और हार्मोन टेस्ट कराने के लिए ब्लड लेते, और जिसको ज्यादा कुछ डाउट होता है तो एमआरआई टेस्ट कराते फुल बॉडी, जैसे मेरा हुआ था। मेरा एमआरआई बॉडी पूरा एमआरआई टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट भी हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था। सारे टेस्ट होने के बाद मेडिकल टीम डिसाइड करते कि लड़का है या लड़की है, जेंडर टेस्ट होता है उस टाइम में। और हार्मोन लेवल जो टेस्ट होता है वो ब्लड में होता है। तो ये जो डिबेट आज चल रहा है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और आप ये भी कह रहे हैं कि यू स्टैंड फर्मली विद द अल्जीरियन बॉक्सर, पर जो लार्जर डिबेट हम देख रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर द इटालियन बॉक्सर करीनी। दुनिया के जो नामी दामी लोग हैं वो उनसे बैक कर रहे हैं और ये डिबेट अभी चलता रहेगा। दुती चंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, अपने पर्सपेक्टिव को समझाया, और इस पे जो आपने फोकस डाला है कि मेडिकल टीम्स ही इसके बारे में एकदम सही जानकारी दे पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट पर्सपेक्टिव। व्यूअर्स, द डिबेट विल कंटिन्यू एंड सो विल द कॉन्वर्सेशन। द मैन वर्सेस वुमन डिबेट continues in the Paris Olympics. You've been seeing the kind of commentary that's coming in. Who's at an advantage? Who's at a loss? We're keeping a close watch on that story. Time now for us to take a short commercial break. Stay with us.